speaker, Captain Sailesh Tiwari, to respond to those questions. Thank you so very much, Rekha ji. Deepak, my compliments to you. I must say that I think it is brilliant to become being sense and belonging. It is very critical. You know, in the army there is a training. There is a very special training. Jahan ki, can you imagine a Gurkha from Nepal says Bharat Mata ki Jai? Wow. And he fights for India. Yes. And he dies for India. I'm a Gurkha officer, so I'm saying that how difficult it is to make that belonging come through. It is a very core point which we have said, because own frequency of notion is robotic. I've worked on artificial intelligence, and I'm in the board on the Japanese artificial intelligence, and they took me because I'm an HRD guy, and they wanted the HRD to work whether the first waitress to serve us food in the restaurant in Japan, in Tokyo, would be able to handle the affairs of the human. And thus, in that case, when I look at it, robotic learning education is not good. I support you, Deepak ji, and I support anybody and everybody here. If I can add value, money to me is not material enough at my age and stage. And I have had a very good life with God's grace, and I can. Marriages in our house were served with patals on the with a mat on the ground. So sare barati patal pe khate the. So I'm okay in that traditional value. So I'm not looking at very big a deal. But if I could add value, but I must compliment you, Deepak ji, sitting in Himachal. You have worked out such a fantastic presentation. And I could add only एक चीज है, इस पर हौसला ना हटाइएगा, क्योंकि मैंने एक शेर है, मैंने एक शाम चिरागों से सजा रखी थी. एक शेर है, मैंने एक शाम चिरागों से सजा रखी थी. That is for people like you, people like Chandrasekhar Azad, people like Bhagat Singh, people who want to create this. तो उसने कहता है, शायर कहता है इकबाल, कि मैंने एक शाम चिरागों से सजा रखी थी, शर्त लोगों ने हवाओं से लगा रखी थी. So the question is, आपका चिराग रह जाए. मैंने एक शाम चिरागों से सजा रखी थी, शर्त लोगों ने हवाओं से लगा रखी थी, जिससे कि आपका हौसला पस्त ना हो. Carry on doing what you are doing. I'm coming to the request of Rekha ji on question and answer sessions. With inadequate resources, how can schools contribute to change in education? I have a dilemma here. I don't think there are inadequate resources in schools. Schools तो बरगद के पेड़ के नीचे बैठा के पढ़ा दो, आदमी पढ़ने को तैयार है, इंसान पढ़ने को तैयार है. There is no inadequate resources. हमारे यहाँ पेड़ बहुत हैं, अमिया के झोरे में बैठा दो, so there is no problem in person teaching. हम चौक और ब्लैक बोर्ड से पढ़े इंसान हैं, लामाटिनियर से, so it's लखनऊ से. So it is not that there are inadequate resources, but I know what you mean. How can schools contribute to change in education? Because they get the license, they have to follow a particular system. And I think at that point, they have to work on the policy. It is not a money-making machine. It is a nation-building, world-building child in your hands. So there has to be a change of thinking, total change of thinking on what I'm going to teach and what I'm going to make a person. I will give you an example here. My father was a governor, board of governors, was part of board of governors for the school which we were studying. There is 3 generations of our family which are studied in that school in La Martiniere. And we were also studying, cousins and everybody, 25 children in the same school. And my father was on an inspection. Principal Colonel Daniels was there. My father asked the principal a question. My father said, Mr. Colonel Daniels, how are my children doing? Principal said, Mr. Tiwari, I refrain. I will not be able to comment on your children. But my students are fine. So, Yeah. so the belonging, Lovely. the ownership, the confidence that I am only connected to my students, I am not connected to your children. He put my father in place in a moment's time, and that is an educated response to ownership, responsibility, belonging. And many years later, when I was doing my UPSC, my father told me this thing, and he said this is how it had happened. And I was then mature enough to understand what the principal meant. So that is another thing which is important
in contributing to change in education in terms of belonging. I go to the next question, and again you can contact me personally, professionally, otherwise, and I will be able to more response. Endeavor is constraint of time, because then I cannot hear your viewpoint and I cannot then counter argue. So how to prepare the children for the unknown and unseen and unexperienced? Don't. Nobody prepared me how to become a father. Nobody said, Bhaiya kya hota, behan kya hota, maa kya hota, kya. I didn't know. It just happened that one fine day somebody told me that your wife has delivered a child, and I became a father. Apart from the biology and physiology, but the concept of father I didn't know. Nobody explained to me. Does a school ever teach you what a father is? Is there a syllabus where they say what is a father? What is a mother? What is a brother? What is society? How is it made? There is no syllabus. They say 2 + 2 is 4. That is the syllabus. And if you get it right, you can get 99%, 100% marks, and you get an admission. The guy who doesn't get it right, maybe Eklavya, could be Karna, I don't know. Mahabharata is my very pet subject. I researched on it 14 years. I'm not coming there this time. You don't have to prepare the children. You have to nourish the students. And you have to nourish the students. Remove the word children from them. Nobody is a child. He's a student. She's a student. And concept, काल, पात्र और स्थान, मन, क्रम और वचन, वो कंक्रीट सामने होना चाहिए. वो बच्चा है ही नहीं, वो विद्यार्थी है. विद्यार्थी को अध्यापक को हैंडल करना चाहिए. देयर इज नो चाइल्ड माँ के सामने होगा भैया. वो सब 40 साल भी, 60 साल की अम्मा और 40 साल का बेटा, वो बचवा कहकर बुलाए, नो प्रॉब्लम. मगर टीचर बच्चा ना बोले, टीचर बोले स्टूडेंट, प्रिंसिपल बोले स्टूडेंट, वो जो भी. आई फाइंड दैट नो प्रिपरेशन इज रिक्वायर्ड. उसको एंगेज करिए उसकी विद्या ग्रहण में. किसका इंटरेस्ट है, उसकी नॉलेज उसको ग्रहण करे. कोई जरूरी नहीं है कि सारे टीचर्स जो 9 और 10 लेकर आ रहा है, 10 out of 10, उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं, और जो 3 लेकर आ रहा है उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं. मोहम्मद रफी साहब 3 लेकर आए, लता मंगेशकर कोई 10 on 10 नहीं लेकर आई. सचिन का स्टूडेंट के बारे में बात करना बेकार है यहाँ पर. तो मोदी साहब के बारे में डिस्प्यूट है. वी आर नॉट गोइंग देयर. They are all great leaders in their own field. Napoleon was a person who was a soldier. So education has to be that you have to nourish it to the student. जिसको पढ़ना ही नहीं है उस पर दिमाग क्यों लगाना. फिर अपने आप रास्ते में उसके लिए सेकंड स्टेटस है, डिफरेंट स्टेटस है, उसको नरिश करना पड़ेगा. मुझे कोई टीचर आए, वो घर में लगाया गया कि तबला हारमोनियम सीखा, मेरे तबले में इंटरेस्ट नहीं था, तो मैं बहुत बेकार विद्यार्थी था, तो सब लोग बोले. तो आई थिंक इट इज अ इवोल्यूशन क्वेश्चन. Could you specify some ways to integrate human resource management in education? Of course. Competency model देश में कितने ड्राइवर चाहिए भैया रोड रोलर बनाने के लिए? सड़क अगर 20,000 किलोमीटर सड़क बनानी है तो कितने रोड रोलर के ड्राइवर चाहिए, कितने इंजीनियर चाहिए, कितने सर्वेयर चाहिए, कितने चाहिए इन द टाइमलाइन. 5 साल का बजट है, 5 साल के अंदर 20,000 किलोमीटर बनाना है. उसका रिवर्स इंजीनियरिंग कर लो, आपके पास सामने आ जाएगा कि कितने लोग आपको चाहिए. उसको एजुकेट करो ना यार. सबको एमबीए करा रहे हैं. एमबीए क्या करना है भाई? उसकी जरूरत ही नहीं है देश को, बिजनेस है ही नहीं. तो सबको टेक्नोलॉजी सिखाओ भाई, सबको डिजिटलाइजेशन सिखाओ. पॉइंट इज कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एजुकेशन के साथ वैसे ही जुड़ा है जैसे पानी और गीलापन जुड़ा है. वो उससे अलग नहीं हो सकता. जल है जब वो उसके अंदर गीलापन हो. और अगर एजुकेट होने के बाद जब नौकरी नहीं मिली तो पिता और माता कहते हैं मैंने तुम्हारे ऊपर 25 लाख रुपए खर्च कर दिया, तुम 25 रुपए भी घर लेकर नहीं आए हो. उस समय स्टूडेंट का हालत देखिए, उस यूथ का हालत देखिए, आंखों में खून उतरता है. वो क्या करे? नहीं मिली भाई नौकरी, क्या करे वो? किसका डाका डाल दे, क्या करे वो? ये सवाल उठता है एजुकेशन और ह्यूमन रिसोर्स को मैच करने का.
और इसको करना पड़ेगा, क्रांतिकारी रूप में करना पड़ेगा, वरना इंडिया कैन कम ऑन अ वेरी नेगेटिव साइड। जो हम 1.3 बिलियन कहते हैं उसमें 40 करोड़ भिखारी है, तो कहेगा 1.3 बिलियन, 30 करोड़ तो माइनॉरिटी में है, उसका क्या करेंगे? 20 करोड़ बूढ़ा है, करेंगे क्या? कैसे बनाएंगे देश को, प्रोडक्टिव कैसे करेंगे? तो उसमें लाना है एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को। Do you believe a degree is just a piece of paper and real life application is important? No. I believe degree is a degree. I believe any qualification. मेरे को बोल दे कि मैं मिस्त्री हूं और मिस्त्री Z कैटेगरी का हूं, वो मेरी डिग्री है उस Z कैटेगरी की, वो सर्टिफिकेशन है। डिग्री केवल ग्रेजुएशन ही नहीं, डिग्री तो टेम्परेचर पे भी बोलते हैं डिग्री है, इतने डिग्री फ़ारेनहाइट है। डिग्री मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड। कोविड में वो चेक करते हैं आपका भैया कितना डिग्री है, रिकॉग्नाइज इट, एंड एवरी डिग्री शुड बी रिकॉग्नाइज। दैट डिग्री इज ओके, चाहे वो मैथमेटिकल डिग्री हो, चाहे वो एजुकेशनल डिग्री हो, यस, इट्स नॉट अ पीस ऑफ पेपर। उसके पीछे अगर आप कॉन्सेप्ट डाल देंगे, जब मैं फौज में गया था ट्रेनिंग थी एकेडमी में, हम लोगों को एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है, 1 मिनट बताऊंगा। हम लोग तो सोचे कि हम तो अफसर बन गए, बहुत बड़े आदमी बन गए, अब तो आ ही गए एकेडमी में, कुछ नहीं बने। उन्होंने हमसे बोला अपना सामान उठाइए और अपने अपनी बैरक में चले जाइए। हमने कभी आज तक 32 किलो का सामान नहीं उठाया था बक्से में। हम तो लाट साहब आदमी थे, अपने घर में यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले, हम लोग को ये सब कुछ पता नहीं था। माता जी के सपने में हम फौज में आ गए, हमने सोचा बस बन गए CDS, ये सब हो गया, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, अब आ गए। उन्होंने अपना बक्सा इतना लिस्ट बना के भरा कर दिया था, लोहे का बक्सा, और वो बोले कि उठाकर ले जाओ, अपने ट्रंक रख दो। हमने तो इतनी सब्जी कभी नहीं उठाई थी, तो वो एक थैला सब्जी का माँ कहते हैं, तो हम लोग सोचते थे क्या हमसे काम करवा रही। तो वो हमने उठाया, उसके बाद किसी तरह घसीट कर कमरे में ले गए, सब कुछ ले गए। उसके बाद अगले दिन इकट्ठा किया, उन्होंने इकट्ठा करके बोला कि आप लोग चलिए सड़क पर, चलने को बोला, और उन्होंने बोला आपको चलना नहीं आता है। और हम 132 लोगों को उन्होंने बोला जब तक आप चलने का टेस्ट पास नहीं कर लेंगे तब तक आप दौड़ के चल में रहेंगे। सो डू यू नो, हम चलने का टेस्ट ऑन द 4th मंथ ऑफ माई ट्रेनिंग पास कर पाए। तो मैं 4 महीने अगर टॉयलेट जाना था, ब्रेकफास्ट करना था, लंच करना था, कहीं भी जाना था, हम सारे 132 लोग या 126 तक लोग पास कर गए थे। हम लोग दौड़ के चल में चलते थे। तब जाके हमको लेफ्ट एंड राइट पता चला, तब जाके हमको पता चला कि 120 कदम 1 मिनट में क्या होता है, 80 कदम 1 मिनट में क्या होता है, 60 कदम 1 मिनट में क्या होता है। जिस चीज को आप 26 जनवरी में तालियां बजाकर अनाउंस करते हो, उसकी ट्रेनिंग है। मगर 130 करोड़ लोगों को चलना नहीं आता है, ये एक हैरानी की बात है। कौन सा स्कूल सिखाता है? अगर 6 इंच आपकी चाल में प्रोडक्टिव फर्क पड़ता है, 6 इंच हर कदम पे फर्क पड़ता है, तो 6 इंच पूरी लाइफ में आप जितना चले हैं, उसको अगर आप मीटर्स को कैलकुलेट कर लेंगे तो कई हजार किलोमीटर आता है जो आप फालतू में चले, जिसकी आपको जरूरत नहीं थी। उसको प्रोडक्टिव एनर्जी में, रिसोर्स में डाल दीजिए और आपको सवाल सामने आ जाएगा। तो डिग्री क्वालिफिकेशन को मैं मानता हूं, रियल लाइफ एप्लीकेशन को भी मानता हूं। दोनों का बायां और दाहिना का साथ है और उसको आपस में जोड़कर ताल मिलाना काम है और उसको करना चाहिए, उसको सिंक्रोनाइज करना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन पर आ रहा हूं। टू व्हाट एस्पेक्ट वुड यू अकॉर्ड द टॉप प्रायोरिटी व्हेन डिजाइनिंग चेंज इन एजुकेशन? एम्प्लॉयमेंट। अगर आप एम्प्लॉयड नहीं हो, आपकी इज्जत नहीं है। अगर आप 2 पैसा कमा के नहीं ला रहे इज्जत का, तो आप गुंडई से लाओगे या चोरी से लाओगे, चाहे सब्जी में माँ के पास से चोरी करके लाओगे, चाहे कुछ करके लाओगे, मगर आपका ईमान वहां बिक गया। आपने उस जगह पतंग खरीदने के लिए जो 10 पैसे जेब में रख लिए, वो सब्जी में से निकाल के 2 ककड़ी नहीं डाल के, वो आपने मॉडिफिकेशन शुरू हो गया, एंड दैट इज चोरी, एंड दैट इज एडजस्टमेंट। जब आपके भाई कहता है चलो कोई बात नहीं, ये तो ठीक है यार, अब क्या करें, वही चीज आप लेटर एम्प्लॉयमेंट में करते हो, वही चीज आप हर जगह करते हो, फिर कहते हो हम इंप्रूव नहीं हुए, हम बने नहीं, हम करें नहीं। शैतानी में परेशानी नहीं है मुझे जो बच्चे छेड़खानी करते हैं उसमें कोई परेशानी नहीं है, मगर मुझे चोरी में परेशानी है। और जब आदमी एम्प्लॉयड नहीं होता गरिमा से, मान सम्मान प्रतिष्ठा के साथ, जब डिग्निटी के साथ एम्प्लॉय नहीं होता है, तो उसके पास कोई चारा नहीं रह जाता, वो फिर नजरअंदाज इधर उधर करके काम करना शुरू कर देता।
इन टेक्निकल टर्म्स अगर पकड़ लिया गया तो चोर कहलाएगा। जब तक पकड़ा नहीं गया तब तक उसकी शिप और बोट पर सब जाके मॉडल भी बनेंगे और पिक्चर भी देखेंगे और सब कुछ करेंगे। मैं सारा इंडिया का ग्रुप HRD हेड था, तो मैंने सबको देखा है, जाना है, पहचाना है और समझता हूँ। G4S में भी था, आर्मी में भी था, कोरिया, नॉर्थ कोरिया में भी था, सब कुछ मैंने सबका देखा, समझा, समझता हूँ। उस बेसिस पर बोल रहा हूँ कि employability, value addition to life, being able to be proud and say हम चना खा लेंगे मगर हम अपनी कमाई का खाएंगे। वो आंख, वो तेवर, वो तैर, वो अगर आप सिखा सकते हैं तो आपकी पढ़ाई में दम है। अगर वो तेवर आप नहीं सिखा सकते तो पढ़ाई का कफन चढ़ा दीजिए।